देवी सज्जनों, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा जितनी भी आज ये जो परियोजनाएं लॉन्च की गई हैं, इसके द्वारा लोगों को और अधिक जानकारी मिलेगी और अधिक सुविधा मिलेगी। जितनी भी क्रिया है वो और अधिक सरल मिलेगी और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ये गुड गवर्नेंस को प्रोत्साहित करेगी। इस अवसर पर अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे मिस अंजलि देवटे, मेंबर पोस्टल सर्विसेज बोर्ड। आमंत्रित करते हैं उन्हें अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए। Shri Ravi Shankar Prasad ji, Honorable Minister of Communication and Information Technology. Shri R.S. Sharma, Secretary, Department of IT. Shri Rakesh Garg, Secretary, Department of Telecom. Senior officers from Department of Posts, Telecom and IT. Our friends from the media, ladies and gentlemen. It is a great honor to address this august gathering today on this occasion of good governance. With the increasing use of information technology as part of the present government's agenda to promote e-governance, the access and ease of delivering public services is being significantly enhanced all across departments. The mega schemes launched in the last 7 months, be it Jan Dhan Yojana or the Digital India project, are all aimed at harnessing technology to bring about inclusive growth. In the Department of Posts, we are currently rolling out a huge IT modernization project, which is aimed at IT enabling all the 1,55,000 post offices in the country and bringing all the products and services along with operations, administration and management of the department on a common central database platform. We have already networked close to 26,500 post offices, mail offices and administrative offices, thereby creating the largest one in a single organization in the country. Core banking solution has also been operationalized in 1,412 large post offices across all the 22 postal circles in the country. Towards the end of the current financial year, we shall be completing the pilot rollout of mobile handheld devices in rural branch offices. These biometric scanner-based handheld devices having solar charging facility along with SIM card-based data connectivity are capable of not only rendering postal and banking services, but can easily offer central and state government services, thereby converting a post office into a common service center. Today, on the occasion of Good Governance Day, the Department of Post is rolling out 3 initiatives to promote good governance. The e-book, which has been launched by the Honorable MOCIT, contains details of the new initiatives of the Department of Posts along with existing services. This e-book can be accessed directly on the India Post official website or by scanning a quick response code printed on a card. In order to provide an easy-to-carry reference book containing the details of all products and services of the Department of Posts in hard form, a pocket book is also being launched. This would be available in all post offices and shall promote good governance by making details of services and their rates available to the common man in a simple, reader-friendly, pocket-sized format. The present maximum limit of investment of insurance in postal life insurance is rupees 20 lakh per individual. In order to provide greater insurance cover to its customers, the upper insurance limit has been enhanced to rupees 50 lakhs. At Varanasi, the department is also launching a pilot with Snapdeal for bringing the small artisans and businessmen to the e-commerce mainstream. In this pilot, an e-commerce portal has been developed and counter facilities are being made available to weavers, small businesses, etc. at Varanasi head post office for showcasing and online sale of their products. Learning from this pilot would help the department in rolling out such facilities for artisans, small businesses all over the country. In the coming months, the Department of Posts will scale up the present initiatives and roll out new schemes to promote good governance and e-governance for its customers. Thank you.
थैंक यू मैम। डिपार्टमेंट ऑफ वर्क्स की तरफ से शुरू की जा रही परियोजनाओं और नई स्कीम्स और नए प्रोग्राम्स की जानकारी देने का बहुत बहुत धन्यवाद। देवी सज्जनों, जैसा कि कहा जाता है कि सूचना ही शक्ति, और विशेषकर आज के इस आईसीटी युग में और इस सूचना को, इस शक्ति को देश के अनेक कोनों तक ले जाने में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस एक विशेष भूमिका निभाता आया है। और आज की भी जितनी भी परियोजनाएं यहाँ पर लॉन्च की गई हैं, ये बहुत ही सरल हैं, अनेक जानकारी देती है और लोगों को एम्पावर्ड बनाती है। और इसकी तरफ एक बार फिर से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो अब मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगी श्री राकेश गर्ग जी को, सचिव डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, उनके विचारों के लिए। माननीय कम्युनिकेशन एवं आईटी मिनिस्टर माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी, मंच पर आसीन सभी महानुभावगण, इस हॉल में पधारे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं मीडिया के बंधुओं, आज मेरे लिए बहुत ही गौरव और खुशी का विषय है कि इस गुड गवर्नेंस डे पर मुझको यहाँ आज बोलने का मौका मिला है। आप सभी जानते हैं कि ये जो सरकार जब से ये आई है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो जो अभी इससे पहले भी कहा गया था कि मिनिमम गवर्नमेंट बट मैक्सिमम गवर्नेंस की एक धारणा लेके चली है। और इस तरफ जो ये हमारा डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम है वो इसी डायरेक्शन में एक कदम है। अगर हमको बहुत अच्छी सुविधाएं लोगों को देनी है, उनके घर पे देनी है, और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गवर्नमेंट उनके हाथ में यानी उनके मोबाइल में देनी है, तो हमारा सामने कोई चारा नहीं है सिवाय इस बात के कि हम अपने जो डिजिटल नेटवर्क है उसको बेहतर करें और अपनी गवर्नमेंट की सेवाओं को डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से दें। मैं जानता हूं कि बहुत सारे यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, ऑलरेडी बहुत ही डिजिटली ट्रेंड हैं और अपने जीवन में इस प्रकार की सेवाओं का उपयोग करते रहते हैं। बट बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे भी होंगे कि जो संभवतः बहुत सारी सेवाओं का डिजिटली उपयोग अभी भी नहीं करते होंगे। बट एक चीज़ ऐसी है कि जो आप सभी बहुत अच्छी तरह से उससे परिचित होंगे और आपने अपने आप देखा भी होगा, और जो मैं समझता हूँ कि 40 साल या उससे उम्र के लोग, ज़्यादा के लोग होंगे, उनको याद होगा कि जब पहले हम रेलवे का रिजर्वेशन करवाने जाया करते थे तो कितना मुश्किल काम था रेलवे का रिजर्वेशन करवाना। आप पहले लाइन में लगिए, जब आप उसके पास पहुँचेंगे टिकट काउंटर पर और आप उससे पूछेंगे कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, बताओ भाई उस ट्रेन में जगह है कि नहीं है, तो 1, 2, 3 ट्रेन का टिकट बताने के बाद कि जगह है कि नहीं है, वेटिंग लिस्ट में क्या नंबर है, उसके बाद वो कहेगा कि भैया हटिए, इतनी ज़्यादा पूछताछ नहीं कर सकते, आप दोबारा लग के लाइन में आइए। आपके लिए असंभव था कि आप अपने हिसाब से बेस्ट पॉसिबल ट्रेन का टिकट का रिजर्वेशन करवा सकें। आप सभी जानते हैं कि जब रिजर्वेशन आपका कंप्यूटराइज हो गया और आपके सामने आपके लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे है, तो आप जितने चाहे कॉम्बिनेशन ढूंढ सकते हैं, ये देख सकते हैं कि किसमें बेहतर आपको जाना अच्छा रहेगा, कहाँ वेटिंग लिस्ट का नंबर कम है, कहाँ टिकट आपको मिल रहा है, कहाँ टिकट नहीं मिल रहा है, और एक बहुत ही सुविधाजनक चीज़ आपको मिल गई है। उसी प्रकार सरकार की ऐसी बहुत सारी सेवाएँ हैं जो आज कंप्यूटर पर दी जा सकती हैं। मैं अभी 3 दिन पहले लखनऊ गया था और मुझे बड़ा सुखद अनुभव हुआ। एक कॉमन सर्विस सेंटर के नाम से एक स्कीम है जो कि हमारे सिस्टर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स वो चलाता है उसको। उसमें कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाते हैं, उसके अंदर बैंडविड्थ वगैरह हमारे द्वारा डिपार्टमेंट टेलीकॉम के द्वारा दी जाती है। तो मुझे अच्छा सुखद अनुभव हुआ उस बात का कि वहाँ पर गवर्नमेंट टू सिटीजन की बहुत सारी सेवाएँ तो उपलब्ध ही थी, बिजनेस टू सर्विस सिटीजन की भी बहुत सारी सेवाएँ उपलब्ध थी। आपको इंश्योरेंस लेना हो, आपको किसी प्रकार की आपकी कोई ख़रीदारी करनी हो जो कि आजकल विभिन्न अमेज़न या फ्लिपकार्ट के माध्यम से होती है, या किसी और तरह की ऐसी बिजनेस टू सिटीजन सेवाएं वहाँ मिल रही थी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों की सेवाएं वहाँ मिल रही थी। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो उसने अपने आप चालू की थी, जैसे कि आपका फ़ोटो खींचना हो तो फ़ोटो खींच सकते हैं, बुक बाइंडिंग करानी हो, डेस्कटॉप पब्लिशिंग करानी हो, उसके अलावा आपको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी हो, कंप्यूटर टाइपिंग सीखनी हो, कंप्यूटर प्रोग्राम सीखना हो, यहाँ तक कि इवन अगर कुंडली का मिलान करना हो या जन्मपत्री बनवानी हो, उस तक की सुविधाएं उस सेंटर पे उपलब्ध थी और वो अच्छा पैसा कमा रहा था। तो एक तरफ तो उसको रोज़गार मिल रहा था और दूसरी तरफ सिटीजन्स की लाइफ आसान हो रही थी। मैंने उसमें देखा कि आप क्या क्या गवर्नमेंट टू सिटीजन की सेवाएँ कैसी ले रहे हैं। हम लोगों ने अभी हम समझते हैं कि जैसे कि अभी भी क्या है कि ये फ्रंट एंड है जो कि तो डिजिटाइज हो गया है और यहाँ से सेवाओं के लिए अप्लाई करना आसान हो गया है, लेकिन बैक एंड में जो गवर्नमेंट सेवाएं चल रही हैं वो बहुत सी डिजिटाइज अभी भी नहीं हुई हैं। बट मुझे बड़ा सुखद अनुभव हुआ। अभी मैं कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश आया हूँ और ये 2 साल पहले से वहाँ पर ठीक से चालू किया गया था, कुछ मिला था।
तो उस समय भी जैसे आपने आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया, निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया या जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया, तो उसमें समय लगता था और उस समय कई बार 2-2, 3-3, 4-4 महीने लग जाते थे। बट मुझे बड़ा सुखद अनुभव हुआ जिस बार जब मैं गया और देखा मैंने इसके अंदर कि ज़्यादातर जो ये सर्टिफिकेट हैं, 4 सर्टिफिकेट की सबसे ज़्यादा डिमांड थी। 90% से ऊपर डिमांड इन्हीं 4 सर्टिफिकेट की थी। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और एक जन्म का प्रमाण पत्र। तो जन्म प्रमाण पत्र थोड़ा टाइम लग रहा था, लेकिन बाकी जो तीनों प्रमाण पत्र थे मुश्किल से 1 हफ्ते में मिल जा रहे थे। तो आज सिटीजन्स की लाइफ इतनी आसान हो गई कि इस कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएंगे, वहाँ से अप्लाई करेंगे और 4-5 दिन बाद या 7 दिन बाद जाके वहीं से उनको सर्टिफिकेट वापस मिल जाएगा। लेकिन ये सेवाएं अभी भी वहीं पर उपलब्ध हैं। कॉमन सर्विस सेंटर जितने रिक्वायर्ड हैं उतने नहीं बने हैं, क्योंकि आपके अगर आप दूर दराज के इलाकों में जाएँ तो वहाँ ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी नहीं है। जो इस सरकार ने एक प्रोग्राम, बहुत व्यापक प्रोग्राम लिया है, बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम लिया है, वो है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का, और इस प्रोग्राम को बहुत पुश दिया है। इसका उनका इस सरकार का ये हम लोगों को लक्ष्य दिया गया है जो हमको पूरा करना है, और जिसकी माननीय मंत्री जी हमारी नियमित रूप से समीक्षा कर रहे हैं कि अगले 2 सालों के अंदर हम अपनी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में इस ऑप्टिकल फाइबर को पहुंचा दें। और इस ऑप्टिकल फाइबर के वहाँ पहुँचने का मतलब होगा कि इन सभी सेवाओं का वहाँ पहुँच जाना, इस ज्ञान की जो ये गंगा बह रही है इसका वहाँ पहुँच जाना, ये जो सेवाएं इसके माध्यम से आ सकती हैं उनका वहाँ पहुँच जाना, और इसके माध्यम से रोज़गार के अवसर भी पैदा हो जाना। आज बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अपने घर में बैठ के, शहरों में बहुत सारे लोग ऐसे हो गए हैं, हॉबीज़ क्लासेस चलाते हैं या कोई और प्रकार की प्रोडक्ट को पैदा करते हैं, या इवन अचार या मसाले या पापड़ ऐसी बहुत सी चीज़ बनाते हैं, और उनके लिए मार्केटिंग करना आसान नहीं होता है। बहुत सारे लोग अब शहरों में ऐसे मिल जाएंगे जो अपनी मार्केटिंग के लिए इस ब्रॉडबैंड को, वेब को, इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग गाँव में भी हैं, लेकिन गाँव के लोगों को वो सुविधा मार्केटिंग उपलब्ध नहीं है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं गाँव में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन उसके पास रास्ते नहीं हैं। तो ये जो सुविधा उपलब्ध होगी, इसके माध्यम से वो रास्ते उनके लिए खुल जाएंगे। तो ये नोफन का प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। इस सरकार ने और भी 2 प्रोग्राम ऐसे लिए हैं कि जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, मैं उसके बारे में संक्षेप में बताना चाहूँगा आपको। एक प्रोग्राम इन्होंने ये लिया है कि जो भी हमारे ऐसे गाँव हैं, करीब करीब हमारे पूरे देश में 6 लाख से ऊपर गाँव हैं, इसमें करीब करीब 55,000 गाँव ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ मोबाइल फ़ोन नहीं चल सकता है। तो इस सरकार ने ये तय किया है कि अगले 5 सालों में हम हर गांव में जहां पर कि मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं है, मोबाइल की कनेक्टिविटी पहुंचाएंगे। और पहले चरण में उन्होंने 2 जगहों के लिए प्रोजेक्ट भी पास कर दिया है। उसमें एक है हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका, जो हमारा उत्तर पूर्व का इलाका है, जहाँ पर मोबाइल की कनेक्टिविटी कई गाँव में नहीं है। तो करीब करीब 5300 करोड़ से ऊपर रुपये से ये योजना वहाँ चलाई जा रही है, और ये प्रयास किया जाएगा कि अगले 1.5 साल के अंदर वहाँ पर इन सब जगहों पर मोबाइल की कनेक्टिविटी पहुँच जाए, इन गाँव में भी पहुँच जाए, और साइमल्टेनियसली जितने भी वहाँ नेशनल हाईवेज़ हैं, उस नेशनल हाईवेज़ में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो लगातार वो सुविधा आपको मिल सके। दूसरा जो प्रोग्राम लिया है वो लिया है लेफ्ट विंग अफेक्टेड एरियाज़। हमारे कुछ ऐसे हैं जो खासतौर से बहुत ही बैकवर्ड इलाके हैं, जहाँ पर विकास की किरणें अभी तक पूरी तरह से नहीं पहुँच पाई हैं। वहाँ के कवर करने के लिए इन्होंने 2199 टावर चिन्हित की है, और उसको चिन्हित करके करीब करीब 3500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अगले सितंबर एंड तक हम लोग वहाँ पर इन सभी जगहों पर टावर्स बना के मोबाइल की सुविधा को पहुँचा देंगे। फिर इसके बाद हमारा प्रोजेक्ट तैयारी हो रही है हिमालयन स्टेट्स के लिए, और फिर बाकी जगहों की तैयारी हो रही है जिसको कि हम पूरा करेंगे। एक प्रोजेक्ट जो और बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चल रहा है हम लोगों का, वो है कि जो आइलैंड स्टेट्स हैं हमारे, जो आइलैंड एरियाज़ हैं, खासतौर से अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, उसकी कनेक्टिविटी को बढ़ाने का। उसके अलावा आज आपने देखा ही कि हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स को यहाँ पर लॉन्च किया है। खासतौर से जो CDOT ने 2 प्रोग्राम बनाए, बहुत ही एम्बिशियस और बहुत ही अच्छे प्रोग्राम है। एक उसका ज्ञान सेतु प्रोग्राम है, जो हमारे नोफन के प्रोजेक्ट के संग बहुत साथ साथ चलेगा। उस ज्ञान सेतु के प्रोग्राम से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हों या पढ़े लिखे नहीं भी हों, चाहे वो इवन अगर विकलांगता से ग्रसित है, फिजिकली चैलेंज्ड है, तो वो भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारी सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो रिजर्वेशन रेलवे का कराना हो, चाहे उनको चावल के, गेहूं के दाम पता करने हो, उनको अपनी कोई फसल बेचनी हो, या कोई सामान खरीदना हो, या सब्जी बेचनी हो, उसके दाम पता करने हो, कहाँ बेचना अच्छा रहेगा, किस मंडी में क्या भाव है, ये पता लगाना हो, या कोई चिकित्सा सुविधा प्राप्त करनी हो, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं जिसके माध्यम से उनको प्राप्त हो सकती हैं। ऐसी CDOT ने, आप जानते ही हैं कि इसमें जो इस कंट्री में जो एक प्रकार की जो क्रांति आई थी, जो हमारा 10 साल से पहले करीब 5% टेलीफोन डेंसिटी थी, खाली 5% लोगों के पास टेलीफोन उपलब्ध था, आज 75% से ज़्यादा लोगों के पास टेलीफोन उपलब्ध है। उसके लाने में CDOT का बड़ा रोल रहा है, क्योंकि उन्होंने एक प्रकार का एक्सचेंज बनाया था, जिस एक्सचेंज से रूरल एरियाज़ में कनेक्टिविटी पॉसिबल हो पाई थी।
अब दूसरा जो आज उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कि इन्हीं एक्सचेंजों को हम कन्वर्ट कर देंगे आईपी बेस प्रोग्राम में, और उसके माध्यम से जो टेलीफोन कनेक्शंस आज लगे हुए हैं उन पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, और आईपी बेस नेटवर्क हो जाने से जो सुविधाएं मिल सकती हैं वो सारी उनको मिलनी चालू हो जाएंगी, और बहुत सारी वैल्यू एडेड सर्विसेज वहाँ जाने लगेंगी। इसको शनय शनय हम पूरे जो 30,000 से ऊपर हमारे ग्रामीण एक्सचेंज हैं उनको इसमें हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो इस प्रकार के 2 प्रोग्राम C.in लॉन्च किए हैं। बाकी आपके जो MTNL ने 2 प्रोग्राम लॉन्च किए हैं वो तो आपको स्कीम्स हैं डिफरेंट तरीके की, जो बहुत आकर्षक स्कीम है, और ख़ास तौर से एक स्कीम जो उन्होंने आज गुड गवर्नेंस डे से चालू की है और 26 जनवरी को खत्म होगी, वो बहुत ही आकर्षक स्कीम है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग उससे लाभ उठाएंगे। बट सबसे बड़ी बात जो उन्होंने लॉन्च की है आज, वो बेसिकली अब बहुत सारी सेवाएं जो MTNL से लेने की ज़रूरत लोगों को पड़ती थी, चाहे नया कनेक्शन बुक कराना हो, चाहे अपनी कंप्लेंट करनी हो, चाहे अपने बिल के बारे में जानकारी करनी हो, चाहे बिल का पेमेंट करना हो, तो उन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिससे सारे काम उपलब्ध हो सकेंगे। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन हमारे माननीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी की नेतृत्व में और उनकी गाइडेंस में बहुत सारे से काम कर रहा है जो गुड गवर्नेंस की तरफ हमको ले जा रहा है। मैं एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि आज आपने अपना समय निकाला यहाँ